us in his Sanatan Shiksha, that is in Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, starts with chapter 20. And in that, he says that there are only three topics that are the essence of the whole scriptures, Sanatana Dharma. We need to know only three subjects. What are those? Sambandha, Abhidheya, and Prayojan. Yesterday, we touched a little bit on Prayojan. That is our sadhya. That is Krishna Prem. The way Srimati Radhika loves Krishna is the goal of our life. To get a flavor of that and get her mercy so we can really decorate the way Tulsi plant is decorated by Manjaris. Have you ever seen Tulsi plant in winter? Looks bare. Doesn't have any beauty. But in the spring, when the Manjaris spring forth and the whole Tulsi is full of leaves, that gives it very, very beautiful. That's what happens when the Manjaris are associated with Radharani in loving service of Krishna. So, we have on our altar Radha Govindaji, Gaurmitai, and Ramdara, as you all have seen so far. And I just want to point out a couple of things about three deities that we have got here. Lord Ram came in Treta Yuga. That he was the incarnation, he was called Maryada Avatar. And same Lord Ram came in Dwapar Yuga as Sri Krishna, as Leela Avatar. And then he was not satisfied. He again came in the form of Chaitanya Mahaprabhu, who is Radha Krishna Amari. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Name. So we have from Treta, Dwapar and Kali, all the avatars on our altar. And Radha Govindaji, he is the deity of Abhidheya. Madan Mohan is the deity of Sambandha, and Gopinath is the deity of Prayojan, Prem. So we have here everything that we can get if we serve the Vaishnavas. Like here we have got an opportunity to serve Ban Maharaj. That is the essence of Chaitanya Charitamrita and Mahaprabhu's Shiksha. Says that Vaishnav Sevan ar Nam Sankirtan. Ei dui karo pabe Govinda Chara. With that, I would request Ban Maharaj to enlighten us how we can get Govinda Chara. आप विष्णु जी बोलो थोड़ा उनके माइक तो दे दो इधर आया उधर नहीं गया है टाइम हो गया अरे टाइम तो होता ही रहता है आ जाइए अच्छा अच्छा उनका गले और कौन बोले दीदी बोलो और है हैं अकेले आए हो अच्छा आप बोलो दो शब्द बोलो यू कैन स्पीक वर्ड्स
पंडित जी संबंध विधि प्रयोजन तत्व अरे सुनिए क्या बोलता है। Okay. Maharaj has requested me to say 2 words. So, by his request, I am doing it. I have no qualification. What is prayojan? My Gurudev once said, if you are going on a very long journey, should you first know where you are going? Because in some communities of devotees, there was a confusion. Oh, we should not hear such high topics. It will be aparad. We may become prakriti sahajya. But my Gurudev said, you must know what is your prayojan, where you are going, what is the direction. Otherwise, you are like this. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has also said that the devotee who does not also study Tattva Siddhant, it is like a person who does not eat grains. They will become weak and sick. So, I met Srila Vana Maharaj when he was brahmachari. And my Gurudev asked him to help me to understand some things. And I understood this is what it means, that person who has been at the feet of Gurudev for 10, 20, 30 years. And they are hearing everything. And Gurudev is calling on them, drilling them. Now you tell this. So such a repository of Gaudiya Vedanta is before us. And we must hear attentively everything. And we have not come only to hear about very beautiful, sweet pastimes, but also the Tattva Siddhanta that will make us strong, so that we do not become deviated and do not become lost. Which way to go, which way to go. So, I have said 2 words, and I do my pranam at Guru Pada Padma and feet of Vaishnavas, and ask that all should please forgive me for what is said incorrectly. And now we shall hear from Sripad Vana Maharaj. और सुशील प्रभु जी थोड़ा बोलो ना क्या है? हिंदी में बोले हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, अच्छा रहता है। सो मेनी ट्रांसलेटर गुरवी गौरचंद्राय राधिकावै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज
एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हैं? हैं? क्या? अरे सब जगह मतलब थोड़ा सब तो हिंदी समझने वाले हैं ना सब, दो चार तो बस ये भी समझते हैं। देखो एक लड़का जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश है क्या बोले, हिंदी में बोलने में सरल होता है ना, है अच्छा लगता है। सारा पृथ्वी में तो दो जगह में केवल हिंदी बोलता हूँ, एक हॉलैंड में बोलता रहता हूँ और एक ह्यूस्टन में, और कहीं नहीं। थोड़ा तो शब्द ही बोल लेता हूँ। प्रभु जी हिंदी जानने वाले हैं सब, हैं? नहीं बेकार ये नहीं, आप ये ट्रांसलेट करते हैं, ये लड़का जो अच्छा हिंदी ट्रांसलेट करता है, ये बच्चा, हाँ क्या नाम, हरिवल्लभ, हाँ अच्छा हिंदी ट्रांसलेट, और उधर दीदी भी ट्रांसलेट कर रही है, अच्छा है कि नहीं है? नहीं तो हिंदी भूल ही जाए, हैं? बहुत आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में बताया, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व के बारे में बताया है। श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद यह तीन तत्व के ऊपर ही उन्होंने आलोचना की। संबंध, अभिधेय यानी भक्ति, और प्रयोजन यानी हमारी अल्टीमेट गोल जो है। ये तीनों तत्व के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को भी सुना है। जिसे चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी भी सरल रूप में बताया। कृष्ण संबंध और प्रेम प्रयोजन तत्व। कृष्ण प्राप्ति करना, कृष्ण के मिलना ही हमारे उद्देश्य नहीं है। क्यों? देखो जितने असुर है वो भी तो कृष्ण के मिला कि नहीं मिला है। रावण कुंभकर्ण से लेकर के है, कालजवन, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, ये लोग भी तो कृष्ण से मिले, किंतु हृदय में प्रेम नहीं होने के नाते कृष्ण के साथ शत्रुता कर ली। इसलिए प्रयोजन क्या है ना, हमें प्रेम ही प्रयोजन दिखा है। जब तक जैसे अभी प्रभु ने अच्छी तरह से बताया, बहुत दो शब्द से बताया, बहुत महत्वपूर्ण शब्द बताया उन्होंने। हम जीवन की पहले उद्देश्य बनाते हैं। जैसे गुरुदेव उदाहरण दे देते, आपको टिकट खरीदना है, हवाई जहाज का टिकट खरीदना है, क्या ऑफिस में जाकर के बोलने से आपको टिकट मिल जाएगा? आपको क्या करना पड़ेगा? कहते से उद्देश्य कहाँ जाना है? इंडिया जाना है, दिल्ली जाना है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है?
आइसलैंड जाना है, ना ग्रीनलैंड जाना है। हम लोग अभी अभी आइसलैंड से आ रहे हैं ना, इसलिए ये लोग आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बातें सही है। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव कहते थे पहले अपने उद्देश्य बनाओ, गंतव्य बनाओ, टारगेट बनाओ, कहाँ जाना है। क्योंकि शास्त्र में भी कहते धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग के बारे में कहा गया। इसके बाद क्या कहते चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम, इसके बाद मोक्ष के मुक्ति के बारे में बताया गया। और इसके आगे पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में बताया गया। यदि हमारे उद्देश्य नहीं रहे हम आगे बढ़ नहीं सकते। साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं हो। कृपा करी कह से जे साध्य उपाय। रायरमंद महाप्रभु से जब मिले, महाप्रभु यही प्रश्न पूछा। प्रभु कहे साधन, हम साधन जो करेंगे तो किसके लिए साधन करें? हमारे गंतव्य स्थल कहाँ, क्या प्राप्ति करने के लिए साधन करेंगे? धर्म अर्थ काम, इसको कहते हैं त्रिवर्ग। ये त्रिवर्ग के लिए कह रहे हैं इसको छोड़ दिया जाए। मुक्ति के लिए भी कह रहे हैं मुक्ति भी छोड़ दिया जाए। क्या चाहिए? पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। ये प्रेम प्राप्ति के लिए हमें साधन करना पड़ेगा। और वो साधन क्या है? भक्ति, अभिधा, जिसे कहते अभिधा में भक्ति हमें अनुशीलन करना पड़ेगा। जब भक्ति हम अनुशीलन नहीं करें तब हम उद्देश्य तक पहुंच नहीं सकते। अभिधेय तत्व भक्ति कहा जाता है। और इसलिए संबंध, अभिधेय और प्रेम। प्रेम भी हमें भी देखना है कौन सा प्रेम हमें प्राप्ति करना है। वैकुंठ प्रेम, अयोध्या और द्वारिकापुरी और गोलोक वृंदावन। ये जब तक हम इसके निर्णय नहीं लें तब तक हम साधन नहीं कर सकते। इसलिए साधन करने के लिए पहले हमें उद्देश्य को रखना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु कर साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करने के लिए उसी प्रकार की साधन करना पड़ेगा और उसी प्रकार सत्संग भी करना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न हो। तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी कह रहे हैं। जी भगवान की कृपा जब तक नहीं हो तब तक हम उसी प्रकार सत्संग भी प्राप्त नहीं करने पाएंगे, मिलेगा नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न हो। साधु संग भी होना चाहिए। जैसे आज मैंने कहा था, सत्संग की महिमा हमारे आचार्य पाद में दिखा रहे हैं। सत्संग, सत्संग हम कैसे करें? सभी तो साधु है, और साधु कौन है? जिसके पास बैठे वो अपने को थोड़ी कहेंगे असाधु कहेंगे, सब साधु ही कहेंगे। किंतु साधु की भी कैटेगरी है कि नहीं? कोई वैकुंठ की उपासना यानी लक्ष्मी नारायण की उपासना करने वाले साधु हैं। कोई अयोध्या में जाने वाले साधु है, और कोई द्वारिकापुरी में जाने वाले वो भी साधु, और गोलोक वृंदावन में जाने के लिए साधु है। इसलिए सत्संग की महिमा दिखा रहे। श्रीमद् भागवत में जितने भी बात कही गई
सभी में एक दिखाते हैं, सत्संग, साधु संग। इसलिए कपिल देव, स्वयं भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति के कहने लगे, हे माँ सदा सर्वदा सत्संग, सतां प्रसंगात् मम वीर्युसंविदो भवन्ते हितकर्ण रसायन कथा तज्जोषणात् आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति रनुक्रमेष्यति। सतां प्रसंगात् मम वीर्युसंविदो भवन्ते हितकर्ण रसायन कथा तज्जोषणात् आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति रनुक्रमेष्यति। कहने हे माँ, जीवन में एक ही उद्देश्य रखिए, सत्संग, संत महात्मा के साथ में बैठिए और भगवान के ऐसे अत्यंत विरजवती कथा को श्रवण करते रहिए। सतां प्रसंगात् मम वीर्युसंविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा। कर्ण और हृदय के सुख देने वाले, आनंद देने वाले ऐसे कथा को सुनते रहिए, है हितकर्ण रसायन कथा। जिस कथा श्रवण करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी लालसा, इच्छा अपने आप दूर हो जाए। तज्जोषणात् आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति रनुक्रमेष्यति। और धीरे धीरे श्रद्धा यानी साधन भक्ति, और इसके पश्चात भाव भक्ति, और अंत में प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर ले। एक क्रम कहा गया, सत्संग के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सत्संग हम कैसे करें? उस सत्संग में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करें। यहाँ पर सत्संग की कहने के लिए कहते हैं, बोले कौन सा साधु से कथा श्रवण करें? बोले निर्मत्सरां सतां। कौन सा साधु? निर्मत्सर साधु की मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करें। निर्मत्सर किसको कहते हैं? एक होता है मत्सरता, माने जिसके हृदय दूसरे की उत्कर्षता आदि देख करके हृदय में जलन हो रहा है, उसे कहा जाता है मत्सर साधु कहा जाता है। और निष्मत्सर कहते हैं जिसके हृदय निर्मल है, किसी प्रकार हृदय में काम क्रोध की बात है कि यंत्र भी दूसरे की उत्कर्षता देख करके जलन नहीं होती है। इसलिए निर्मत्सर साधुगण है। ऐसे निर्मत्सर साधुओं की मुखारविंद से कथा सुनिए। साधु तो जगत में आपके बहुत मिल जाएंगे, किंतु श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं धर्म प्रज्जित तो कोई तो वो अत्र परमो निर्मत्सरां सतां वेद वास्तवत्र वसुद शिवदम तापत्र उन्मलम श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किंबा परमेश्वर सद्दो हृदय अवरुद्धते कृतिभी शुश्रुभी तत्क्षणात्। देखो हम यहीं पर दे रहे शब्दों के जो है निर्मत्सर साधुओं की मुखारविंद से हरि कथा श्रवण के लिए कहा है। दूसरे की उत्कर्ष देख करके, उत्कर्ष समझते हो है पसपारेट, उनको देख करके जिसके हृदय में जलन होता है वो के मत्सर साधु कहा जाता है। निर्मत्सर जिसके हृदय समस्त प्रकार की जड़ीय वासना से निर्मुक्त हो चुका है, ऐसे संत महात्मा होनी चाहिए है? अपने किसी प्रकार लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए भी लालसा नहीं रखते हैं।
ऐसे संत महात्मा हो। श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं। भागवत तो श्रवण करना है, किंतु भागवत किससे श्रवण करें? भागवत सुनाने वाले तो बहुत है? कुर्मी, ज्ञानी, जोगी, यहां तक भी लेकर के अद्वैतवादी लोग भी भागवत भी कथा सुनाते हैं। किंतु कहते हैं अवैष्णवो मुखोदगिर्णं पुत हरिकथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्वोच्छिष्ट यथापय। पद्म पुराण प्रमाण दे रहे हैं। अवैष्णवो मुखोदगिर्णम, अवैष्णव जो वैष्णव नहीं है, ऐसे अवैष्णव की मुख से कथा श्रवण करने से तुम्हारे हृदय दूषित हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, देखो दूध पीने से शरीर में क्या होता है? ताकत होता है? शरीर में ताकत आई है? किंतु देखो वह दूध यदि सांपों के मुंह के द्वारा उच्छिष्ट हो जाए, दूषित हो जाए, तो वो दूध क्या करे? पीने से मृत्यु तो हो सकता है? इसलिए शास्त्र में कहा गया अवैष्णवो मुखोदगिर्णं पुत हरिकथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यम। अवैष्णव के मुख से हरिकथा श्रवण करना चाहिए नहीं चाहिए? किससे हरिकथा श्रवण करें? निर्मत्सर संत महात्मा के मुखार है, जिसके हृदय में किसी प्रकार मत्सरता नहीं, यह तो ये छल कपट भी नहीं है, इसके ऊपर भी व्याख्या होते जा रहे हैं। जिसके हृदय सदा सर्वदा निर्मल हो चुका है, ऐसे संत महात्मा है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद है, संत महात्मा सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे है, मातृगर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ जंगल के ओर चल रहे हैं। किसी प्रकार शरीर में वस्त्र नहीं था। जंग प्रभजंत मनुवित वेद कृतम दैवान विरह कातर आजुहाव पुत्री तन्मय तरो विनेदुतं सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मिन्। सुत गोस्वामी पाद शौनकादि ऋषियों के निकट बता रहे जंग प्रभजंत मनुवित अपेद कृतम, मातृगर्भ से जन्म लिया सुखदेव गोस्वामी पाद, किसी प्रकार जन्म संस्कार तक नहीं हुआ है। 16 साल की बालक जैसे, इतने सुंदर दिव्य है, कंजल लोचन है, अर्ध प्रस्फुटित कमल के भांति जिनकी आंख, कंजल लोचन, चिंतन में, भगवत चिंतन में संपूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, जिनके दर्शन से ही सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। वृक्ष आदि है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जिनके दर्शन करके प्रेम में डूब गए। बोले कैसे पता चला? सबके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो गई। बोले सुखदेव गोस्वामी के दर्शन से ही सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। बोले उत्तम भागवत किसको कहते हैं? जहार दर्शने आई से कृष्ण प्रेम, केवल दर्शन मात्र से ही सभी लोग प्रेम में उन्मत्त हो गए। इसलिए कहता है ऐसे उन्नत कोटि के संत महात्मा अतीव दुर्लभ है, और रहने पर भी हम देख नहीं पाते। कहाँ देख पाएंगे? हृदय यदि निर्मल नहीं हो, संत महात्मा हमारे पास भी आ जाए, हम देख नहीं पाएंगे।
है? किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए सुध गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे शौनक आदि ऋषि सुनिए, है कैसे संत महात्मा जंग प्रवजंत मुनिवित अवेद कृतम दैपायन विरह कातुराजुभाव पुत्री तन्मयतरो विनय। उसके पीछे उसके पिताजी वैष्णदेव हा पुत्र करके दौड़ने लगे। सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा नहीं देखा, जंगल के चलने लगे और उनके प्रतिध्वनि एको आने लगे। क्या आने लगे? काकस्य पुत्र परिवेदना, कौन तुम्हारे पुत्र है, तुम क्यों ये रो रहे हो? टीकाकार वर्णन करते जा रहे हैं। व्यासदेव तो कह रहे हा पुत्र मेरे बेटे, कहाँ जा रहे जंगल के हो हैं? किंतु वो प्रतिध्वनि जो है कैसे आ रहे हैं? कह रहे हैं कि काकस्य परिवेदना। बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत में तो बताया। जब सुखदेव गोस्वामी बात चलने लगे, कुछ अप्सराएं जो है स्नान कर रही थी, उनकी किसी प्रकार लज्जा नहीं हुई। और देखो व्यासदेव गोस्वामी पाद जब आने लगे और व्यासदेव के देख करके वो सब लज्जित हुए, वस्त्र धारण किया। उस समय व्यासदेव जी ने ये प्रश्न पूछा, मेरे बालक 16 साल किया जैसे, इतने सुंदर दिव्य शरीर, उनको देख करके आप लोगों के किसी प्रकार हृदय में लज्जा उत्पन्न नहीं? और मैं जैसे वृद्ध है और मुझे देख करके आप लोग की ऐसे भाव क्यों हुआ? उस समय उन लोगों ने इतने सुंदर जवाब भी दिया, उत्तर दिया, गजब की बात है। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहे, हम नहीं करें, आश्चर्य की बात है। देखो महाभागवत की लक्षण क्या बता रहे हैं? चलो वो तो उत्तर भागवत में ही है, शायद आप लोग बहुत बार श्रवण किया है। क्या उत्तर दिया पता है? क्या उत्तर दिया है? बहुत सुंदर। विषय वस्तु में आगे चले जाए है। देखो उस समय की, इसलिए मैं भी इसलिए कह रहा था, ये संत महात्मा किसको कहते हैं? उच्च कटि के जो संत महात्मा हम संग करना चाहते हैं, भगवत पार्षद देह प्राप्त निर्धुत कषाय। और तीसरी भगवत पार्षद देह प्राप्त निर्धुत कषाय और मूर्छित कषाय, 3 प्रकार के संत महात्मा होते हुए है। भगवत पार्षद देह प्राप्त है, हम सत्संग करना चाहते हैं ना। कौन से सत्संग हम करें? सर्वो उत्कृष्ट जो संत महात्मा भगवत पार्षद देह प्राप्त, जो भगवान की जो नित्य परिकर पार्षद, ऐसे संत महात्मा की सत्संग वो है कौन? जैसे नारद ऋषि भगवान के नित्य परिकर है, भगवत पार्षद देह प्राप्त, उत्तम महाभागवत, उत्तम महाभागवत। दूसरी निर्धुत कषाय है, संसार की किसी प्रकार कोई वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखते है। देख है, इस सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया रहा है। और तीसरी मूर्छित कषाय है, साधन भजन तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, कहीं कहीं सामान्य रूप में कषाय, सात्विक भावना आदि भी रह जाते हैं,
उसके उदाहरण दे रहे हैं। नारद ऋषि जब दासी पुत्र होकर जन्म लिया, नारद ऋषि अपने जीवन चरित्र की कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध में है, आई थिंक 5वें अध्याय में नारद ऋषि अपने जीवन की कथा, इतिहास सुनाया। हे व्यासदेव सुनिए, मैं कैसे भगवान की प्राप्ति किया है। तो ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा के संग की हम बता रहे हैं। चलो आगे की कथा हम सुनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद की कथा, हरि कथा सुनने के लिए सभी लोग इतने उत्कंठित क्यों हुए हैं? परीक्षित महाराज की सभा में जब सुखदेव गोस्वामी पाद जब पधारे, उस सभा में सबसे उच्च कोटि के सब संत महात्मा विराजमान थे। उनके पिता व्यासदेव भी विराजमान थे हैं? उनके पिताजी के पिताजी है पराशर ऋषि भी विराजमान थे, और ना जाने कितने तत्वज्ञ, रसज्ञ, मर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ, बड़े बड़े सब संत महात्मा विराजमान थे। जब सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सभा में जब पधारे, सभी लोग आसन छोड़कर, अपने अपने आसन छोड़ करके खड़े होकर के सुखदेव गोस्वामी पाद की अभिवादन किया, आप्यायन किया, बुलाया, बैठिए। क्यों? इसमें भी रहस्य छिपे हुए हैं। हमारे आचार्य पाद वर्णन करते जा रहे हैं, कथा श्रवण करना, सत्संग करना कैसे करना है और किससे करना है? थोड़ा यहीं पर कहते अधिकार भेद से करें तो उस नहीं है। जो जैसे अधिकारी है अपने अधिकार के अनुसार सभी करते जा रहे है कि नहीं? अधिकार अनुसार करें। तो सुखदेव गोस्वामी पाद के मुखारविंद से सब कथा श्रवण करना चाहते हैं। बोले क्यों? ये तो भागवत कथा स्वयं व्यासदेव ने अपने बेटा सुखदेव को तो सुनाया है। देखते हैं कृष्ण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में चतुश्लोकी भागवत को जो प्रकट कर दिया, फिर ब्रह्मा जी इसी कथा को नारद जी के सुनाया, नारद ऋषि व्यासदेव के सुनाया, व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी के सुनाया। ये परंपरा आ रहे हैं। निगम कल्पतरु गलित फलन सुखम खादमृत द्रव संचिता पीबत भागवत रस मालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत कथा जो है इतने अमृत सुस्वादु स्वादिष्ट है, इतने सुंदर प्रपक्व जो फल जो कहा जाता है, वेद रूपी कल्प वृक्ष की ये अत्यंत सुंदर स्वादिष्ट प्रपक्व फल कहा जाता है, जिसमें गुठली तक भी नहीं है, छिलके भी नहीं है, केवल रस रसमालयम है। इतने सुंदर प्रपक्व फल जो है पक गया। और यह भी नहीं है सुख पक्षी के चोंचों के द्वारा क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया, चोंच लगा। देखो हमारे आचार्य पाद कहते हैं कोई फल पक जाए और उसी समय कोई तोते हैं ना, सुख पक्षी तोते, उसमें चोंच लगा दी और वो इतनी सुंदर स्वादिष्ट होता है, क्या वर्णन करें हैं? ये लिखा रहे हैं, निगम कल्प तरुर गलित फलन सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम।
पीबत भागवत रस माल मुहुरो रसिका भुवि भाव। ये प्रपक्व फल कैसे धराधाम में आए? गुरु परंपरा से। यदि कहीं फल पक जाए और नीचे ऐसे फल पक जाए, प्रपक्व फल, और नीचे धरती में गिर जाए, वो क्या हो जाए? तितर बितर हो जाए, मैं कंप्लीटली नष्ट हो। किंतु इसलिए ये फल कैसे आए? गुरु परंपरा से प्राप्त फल है, मिला। इसलिए सुकम खाद अमृत ध्रुव संजीतम। विशेष करके यहाँ पर सुखदेव सुख पक्षी के द्वारा ही है प्रसिद्ध, और भी स्वादिष्ट बने। अभी इस कथा प्रसंग में पुराण में लिखते हैं, सभी तो भागवत कथा सुनाते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुनने के लिए सब क्यों उत्कंठित हो रहे हैं, सब क्यों इतने तरस रहे हैं? व्यास से लेकर के, पराशर से लेकर के, और जितने भी है बड़े बड़े संत महात्मा उस सभा में विराजमान थे। परीक्षित महाराज तो है ही है। बोले ये सुख कोई साधारण सुख नहीं है, साधारण नहीं है। इस सुखदेव गोस्वामी पाद की पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी साक्षात राधा जी की प्रिया सुख है। राधा जी की अत्यंत जो है प्रिया पालिता सुख कहा। राधा जी स्वयं अपने हाथ से है वो सुख के क्या किया? पालन पोषण किया। और सुंदर सुंदर अनार के दाने होते हैं ना, लाल लाल जो होते हैं, राधा जी खिलाती थी। मणिपुंज रिश्तो सुकोपाच बचे तुम है। संस्कृत में कहता है दाड़िम्ब फल। दाड़िम्ब फल में है अनार के दाने है, सुंदर लाल लाल दाने के जो है राधा जी स्वयं खिलाती थी, और अपने हाथ में रख करके सिखाती थी। क्या बोलते हो? गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखदेव गोस्वामी पाद अपने पूर्व जन्म की इतिहास बता रहे हैं। पुराण की कथा है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित सुनिए, पूर्व जन्म में मैं राधा जी की जो है अत्यंत प्रिय पाली था, सुखी था। संग राधा जी मुझे बाएं हाथ में रख लेते। छोटा सुख पक्षी है ना, बेबी बर्ड सुख पक्षी, और सुंदर सुंदर अनार के दाने होते हैं, लाल लाल होते हैं, इतने सुंदर स्वादिष्ट है, और उसको खिलाती थी। और क्या बोलती थी? हे सुख, तुम क्या जप करो? कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण नाम जप करो। कृष्ण नाम जप करना कठिन होता है, टेढ़े हुए ना। कृष्ण राम नाम तो सहज हो जाता है। कृष्ण कहने के लिए जीभ को, जिया को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है भाई, थोड़ा टेढ़ा करो तो कृष्ण नाम निकलेगा। कृष्ण टेढ़े भी है, नाम भी टेढ़े है। तू टेढ़े, टेढ़ी नजरी है, सब तुम्हारे टेढ़े। ब्रज टेढ़ा, और जमुना भी टेढ़ी है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा जी सिखाती थी, चलो जिसकी प्रकार से भी हो। एक दिन की बात है, ये सुख जो है उड़ते उड़ते नंदगांव की ओर चले गए। कहाँ चले गए? नंदगांव, जहां पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलकूद कर रहे थे। एक सुंदर तमाल पेड़ के ऊपर बैठ करके एक सुख पक्षी, सुख बाल बच्चा जो है, कृष्ण 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 नाम जप करने लगे, बिल्कुल राधा जी के ट्यून जैसे। राधा रानी के स्वर से ही कृष्ण 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 कृष्ण। इतने समय कृष्ण देखा, अरे राधा जी कहाँ से आई, वो भी पेड़ के ऊपर। कृष्ण देखा तो राधा जी तो नहीं है, ये एक छोटा जैसा सुख पक्षी बैठा हुआ है और कृष्ण कृष्ण कर राधा जी के स्वर से। कृष्ण ने क्या कि उस सुख पक्षी को पकड़ लिया है। और इतने समय राधा जी आई, बरसना से राधा जी आई। देखो कृष्ण कहने लगे, है तुम मेरे नाम जप मत करो। क्या नाम जपो? राधे राधे नाम जप करो। अच्छा, सुख पक्षी राधे राधे नाम जप करने लगे। इतना समय राधा जी आई, राधा जी कहने लगी, कृष्ण ये मेरे सुख है, पक्षी है, मुझे दे दो। कन्हैया बोले, थोड़ी उड़ने वाले पक्षी तुम्हारा हमारा थोड़ी होता है, जिसके पास आ जाता है उसका ही। उड़ने वाले है ना, है कि तुम्हारा है हमारा है क्यों? मैं नहीं दूंगा। उस समय राधा जी ने माँ जसोदा के निकट जाकर के शिकायत कर दी। माँ जसोदा आई है, माँ जसोदा ने क्या कि एक हाथ से कन्हैया के हाथ को पकड़ ली और दूसरे हाथ से सुख पक्षी को पकड़ ली, छीन ली और कहने लगे, बेटा तुम्हारे पिताजी नंद महाराज भोजन के लिए बैठे हुए हैं, तुम जब तक नहीं जाओगे तुम्हारे पिताजी भोजन नहीं करेंगे। हैं? ऐसे करके माँ जसोदा ने गोपाल के जो है पकड़ एक हाथ से और दूसरे हाथ से सुख पक्षी को लेकर के राधा जी के हाथ में दे दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा जी बरसाने में आई। राधा जी देखा ये सुख कृष्ण कृष्ण नाम नहीं जप कर रहे हैं। क्या नाम जप कर रहे हैं? बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधा जी कहने लगी, अरे सुख नहीं नहीं नहीं, मेरे नाम जप करो, कृष्ण नाम जप करो। है सुखदेव गोस्वामी पाठ कर रहे हैं, मेरे तो दो गुरु हो गया, एक मंत्र गुरु हो गया और एक मंत्र गुरु माने दीक्षा गुरु। कृष्ण मंत्र दे दिया ना राधा जी ने, है इसलिए मेरा क्या हो गया, राधा जी क्या बनी? दीक्षा गुरु बनी। और कृष्ण मेरा क्या गुरु हो गया? शिक्षा गुरु हो गया। तो कौन गुरु के हम छोड़े और कौन गुरु के पकड़े? आप बताओ। शास्त्र में कहते हैं दीक्षा गुरु के जानियो ताहारो रूप, शिक्षा गुरु के जानियो ताहारो स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के भेद होना नहीं चाहिए। थोड़ा गुरु तत्व में यहाँ पर भी प्रकाश डालना है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के कोई भेद करना नहीं चाहिए। जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के भेद करते हैं है वो तत्व सिद्धांत में प्रवेश नहीं किया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं, दीक्षा गुरु के जानियो तुम्हें तारो रूप,
और शिक्षा गुरु के जानिए तुम्हें ताहार स्वरूप अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। एक ही तत्व है, गुरु एक ही है। वो गुरु अखंड गुरु तत्व कहा जाता है। गुरु कोई खंडित होते नहीं होते, गुरु एक ही गुरु होते। कृष्णं वंदे जगत गुरु, गुरु एक ही है। ये कहता है अखंड गुरु तत्व कहा जाता है। वही अखंड गुरु तत्व है कौन? कृष्ण के प्रकाश विग्रह बलदेव प्रभु। वही स्वयं कृष्ण ही बलदेव के प्रभु के रूप में प्रकटित हुए है। आचार्य वपुष, आचार्य चैत्य गुरु आचार्य वपुषा, भागवत में प्रष्टीकरण कर दिया। स्वयं भगवान है, आचार्य यानी गुरु के रूप में ही, चैत्य गुरु के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। हम जब गुरु तत्व आलोचना करते हैं, एक तो है दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु, और एक चैत्य गुरु, और चौथा वर्तमान प्रदर्शक गुरु, जो मुझे रास्ता दिखाते हैं। उसके कहा जाता है वर्तमान है रास्ता, पैथ, जो हमारे भक्ति के पथ शुद्ध भक्ति धारा की तरफ ले जाते हैं, उसी की कहा जाता है वर्तमान प्रदर्शक गुरु। एक हो गया दीक्षा गुरु, जिससे हमें मंत्र प्राप्ति हुई, उसी कहा जाता है दीक्षा गुरु कहा जाता है, दीक्षा मंत्र आदि प्राप्ति हुई। और शिक्षा गुरु, जिससे भगवत तत्व आदि में प्रवेश करने के लिए शास्त्रीय सिद्धांत हमें प्राप्ति हुई, शिक्षा प्राप्ति हुई, उसे कहा जाता है शिक्षा गुरु कहा जाता है। चैत्य गुरु स्वयं भगवान, चैत्य गुरु वपुषा, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में जो विराजमान है? साक्षी रूप में स्वयं हुई साक्षी, सबके हृदय में मैं ही साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में मैं ही हूं, है? और वही भगवान जो परमात्मा के रूप में विराजमान है, जो कि जब सुकृति परिपक्व हो जाता है तो अब धीरे धीरे वही हमें रास्ता दिखाते हैं। गुरु के तत्व इसमें बहुत रूप में शास्त्र में दिखाया गया। चलो आगे की कथा सुनाते हैं। कहीं दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के में भेद ना करें, इसलिए कह रहे हैं दीक्षा गुरु के जानिए तुम्हें तारो रूप, और शिक्षा गुरु के जानिए तुम्हें तार स्वरूप अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दे रूप है। कृष्ण तो एक ही है और ना जाने कैसे सुंदर रूप में, विविध रूप में प्रकाशित हो रहे। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। राधा कृष्ण एक ही तत्व है। अभी कथा में आ जाइए, है स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाठ करें, ये राधा जी मेरे क्या है दीक्षा गुरु हो गए ना, जिन्होंने मुझे कृष्ण मंत्र दीक्षा दी। और कृष्ण मुझे क्या दिया शिक्षा दे दी। चलो देखो, इसको अभी और भी गंभीर रूप में यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं, कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में पढ़िए, 104 नंबर श्लोक, 1 नंबर श्लोक और 104 नंबर श्लोक, दोनों श्लोक पढ़िए। चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिंच मौली। शिक्षा गुरु मेरे कौन है? बिल्वमंगल ठाकुर करें भगवान शिखिपिंच मौली, स्वयं कृष्ण बिल्वमंगल ठाकुर दीक्षा ली थी सोमगिरी नाम से, कोई एक शुद्ध वैष्णव से दक्षिण देश में, साउथ इंडिया में। इसलिए चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिंची मौली है। और मेरे शिक्षा गुरु कम नहीं है, कृष्ण कहीं किसी प्रकार कम नहीं है। प्रेम दंच में काम दंच में जीवनंच में जीवन पर वेदनंच में वेदना पर।
प्रेम दंच में काम दंच में जीवनंच में जीवनाप वेदनंच में वेदनाप। 104 नंबर श्लोक है श्री कृष्ण का नाम मृत है। चिंतामणि के कह रहे हैं ये मेरा वर्तमोपदर्शक गुरु, वर्तमोपदर्शक गुरु जो मुझे वृंदावन की ओर रास्ता दिखाया। कथा तो आप जानते हैं ना, बिल्ल मंगल ठाकुर की कथा, सब बोलते जाए तो है समय चला जाए। चिंतामणि ने कहा ना जाओ वृंदावन में जाओ, है तो इसलिए कहते हैं वर्तमोपदर्शक गुरु चिंतामणि। चिंतामणि जयति, पहले अपने वर्तमोपदर्शक गुरु चिंतामणि के जय युक्त होकर है। चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरु में, सोम नामक सोमगिरी नामक ऐसे शुद्ध वैष्णव से उन्होंने दीक्षा ली है। बिल्लमंगल ठाकुर तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और रसिक भी थे वो, सर्व प्रकार की जो है शास्त्रज्ञ धर्मज्ञ मर्मज्ञ सब कुछ जानते थे है। किंतु दैववशत जैसे भी हो चिंतामणि की पास आ गए थे और चिंतामणि ने उनको कहाँ भेजा, वृंदावन को भेजा। इसलिए करें चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिबिंच मौली। ये हम जो ले रहे हैं शिखिबिंच मौली, मोर पंख धारण करने वाली स्वयं कृष्ण है, द्वारकाधीश कृष्ण नहीं, मथुराधीश कृष्ण नहीं। क्यों मथुराधीश द्वारकाधीश कृष्ण कभी मयूरपुंछ धारण नहीं करते, ये सिद्धांत दे रहे। इसके सिखबिंच मौली है, इसलिए चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखबिंच मौली। वैनंदन श्याम सुंदर कृष्ण के लिए कार्य है। आइए कितना सुंदर भाव, इसलिए कह रहे हैं 104 नंबर श्लोक में करे मेरे शिक्षा गुरु कौन है, कौन कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान ही है मेरे निकट शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट हुए। एक दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु है। इसलिए कहते प्रेम दंच में काम दंच में वेदनंच में वेदना पर वेदयति प्रेम शिखा परिपाटक इति विद। जिससे टीकाकार वर्णन करते जा रहे हैं जिन्होंने मुझे प्रेम की परिपाटी सिखाया। भजन करते 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 जब उच्च स्तर में चले जाते हैं साधक, तब उस समय एक जरूरत होता है जिसे कहा जाता है भजन शिक्षा गुरु कहा जाता है। भजन शिक्षा गुरु, भजन माने सेवा कैसी करनी है? सेवा की परिपाटी हमें सीखना पड़ेगा ना है? भजन शिक्षा गुरु जरूरत होता है। गुरु के तत्व में और भी गभीर गभीर में जाए है। जैसे समुद्र के नीचे जितने भी गोताखोर चले जाते हैं और वो जितने नीचे में जाते हैं उतना ही उनकी अनेक जो बहुमूल्य रत्न आदि उसकी प्राप्ति होता है। समझ में आ रहे कि नहीं? समुद्र के गंभीर समुद्र में चले, पैसिफिक ओशन में है, डुबकी लगाइए, चलते जाइए, नीचे जाए है, ना जाने कितने कितने मणि माणिक्य हीरे जहरत आपको मिलेगा। तात्पर्य क्या है? तत्व सिद्धांत रस सिद्धांत में प्रवेश हो जाता है। चलो आगे की कथा मैं सुनाता हूँ, ये तो कोई इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अभी सुखदेव के बारे में तो हम बताते जा रहे हैं, किंतु चले गए थोड़ा बहुत आगे चले गए हैं, गुरु के बारे में कहते जा रहे हैं। कोई साधारण नहीं। सुखदेव गोस्वामी बात करें, अभी दीक्षा गुरु मेरे शिक्षा गुरु श्रीमती राधिका क्या हो गए मेरे दीक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु मानो कृष्ण शिखबिंच मौली है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बात करने महाराज परीक्षित मैं किसके बात छोड़ू है, मैंने दोनों ही नाम जप करने लगा। क्या नाम जपा?
बोलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले किसके नाम हो रहा है? राधा नाम। दीक्षा गुरु है ना, हम भी जप कर रहे हैं। हम कृष्ण नाम जप नहीं जप कर रहे अभी। किसको नाम जप करते हैं? राधा नाम। हरे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे है। देखो हमारे गुरु कौन बने? राधा जी। थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। सावधानता घटी दुर्घटना घटी। ध्यान से सुनिए। हैं? हमारे गुरु कौन है? एक तत्व विचार, एक रस विचार है। राधा जी हमारी गुरु है। उसे सुखदेव गोस्वामी बात करें, मैं दोनों नाम जप करने लगे। यही जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये वास्तविक ये राधा कृष्ण ही है। पहले राधा नाम, इसके बाद कृष्ण नाम। स्वयं कृष्ण भी कहा ये पहले राधा जी के नाम जप करें, इसके बाद मेरे नाम है। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, एक दिन की बात हुई है, राधा जी मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। एक दिन राधा जी मुझे अनार खिला रही थी है, और मैं भी राधा जी के हाथ में ऐसे बैठा था है। एक दिन राधा जी मुझे क्या करने लगी? प्यार से चुम्बन करने लगी है। जैसे माँ जैसे अपने छोटा बच्चा को गोद में लेते हैं ना, और बीच बीच में क्या करते हैं माता जी? अपने बालक के मस्तक को जो है सूंघते हैं। ये वात्सल्य भाव की एक लक्षण भी शास्त्र में कहा गया। उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कभी चुम्बन भी करते हैं, बालक के आलिंगन करते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका मुझे है अपने हाथ में लेकर के आहो, मानो वक्षस्थल पर ऐसे ही रखा, कितने प्यारे हैं, और रख करके बीच बीच में मुझे आलिंगन करने, और बीच बीच में मुझे चुम्बन करने लगे है। और ठीक उसी समय मैंने क्या कि राधा जी के होठों में मैं भी चुम्बन कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओहो, राधा जी की होठों में जो अधरम अमृत जो है, उस अमृत को मैंने पान कर लिया। देखो, राधा जी के अधरामृत के कोई थोड़ी सी पान कर ले है, उनकी बोलना, उनकी जो कुछ भाई इतने मधुर होगा, कोई वर्णन नहीं कर सकते। श्लोक है, शास्त्र में श्लोक है, मैं ढूंढ रहा था, इसमें लिखा, चलो बाद में बताएं है। एकदा श्री राधा सुकेन आलिंगन चुंबेन, एक समय श्रीमती राधिका यही सुख पक्षी के जो है आलिंगन चुंबन करने समय, और सुख भी क्या की राधा की होठों के चुंबन कर लिया, और राधा की अधरामृत के पान कर लिया है। राधा जी की अधरामृत की प्राप्ति हो जाए, उनकी इतने मधुर स्वर होगा, क्या बता सकते हैं? ये पुराण की कथा, शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद जब कथा बोलते थे, भागवत कथा बोलते थे हैं, उनकी कथा इतनी सुंदर मधुर स्वादिष्ट होते, इसलिए कहते कर्ण रसायन हो जाता है। सभी तो लोग कथा तो बोलते हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी की कथा में इतने मधुर कैसे आ गया? बोले साक्षात राधानी की ही अधरामृतम जिसमें है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। आज
इसलिए सभी उस श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए है बड़े बड़े संत, यहाँ तो उनके नारद ऋषि भी विराजमान हैं, पराशर, नारद, पराशर, व्यास, उन्होंने जानी कितने बड़े बड़े संत महात्मा के नाम भी लिखा गया। एक नहीं, तत्त्वज्ञ, मर्मज्ञ, त्रिकालज्ञ, ऋषि, संत, महात्मा, ब्रह्मज्ञ, जितने प्रकार के सब संत महात्मा विराजमान हुए सुखदेव गोस्वामी पाद की मुखारविंद से कथा सुनने के लिए। है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की। हम इसलिए कह रहे हैं सत्संग, साधु संग। जीवन में किसी के यदि ऐसी सौभाग्य हो, अनेकों जन्म की सुकृति हो, तो ऐसे सत्संग प्राप्त हो जाता है और ऐसे संत महात्मा के दर्शन होता है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में ये श्लोक की कार्य है, धर्म प्रजित कोइतवो अत्र परम निर्मत्सनां सता। परम निर्मत्सर संत महात्मा कौन? सुखदेव गोस्वामी पाद। किसी प्रकार हृदय में सांसारिक वासना तो बहुत दूर की बात है? सदा सर्वे क्षणकाल के कृष्ण छोड़ करके, राधा जी छोड़ करके उनके स्मरण नहीं होते थे। स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, जब जब राधा जी की स्मरण हो जाती है, सन्मासिक भवेत मूर्छा। हम नहीं कर रहे, विश्वनाथ चक्र टीका में लिख रहे हैं। बोले अपने गुरु पाद के स्मरण होने के साथ ही साथ षाण्मासिक भवेद मूर्छा। षाण्मासिक माने 6 महीने काल तक मूर्छित पड़े रहते हैं। और परीक्षित महाराज के सभा में 7 दिन में कथा समाप्त करना है ना, कैसे करेंगे आप बताओ? इसलिए उन्होंने किसी गोपियों की नाम तो बहुत लिया, अपने गुरुदेव के भी नाम नहीं लिया। और गुरु के नाम बिना जिया पवित्र नहीं होता, शास्त्र में कहा गया है। कुछ भी बोले पहले गुरुदेव के जय देना पड़ता है, गुरुदेव के नाम ही लेना पड़ता है कि नहीं? गुरु किसी सुखदेव गोस्वामी पाद अभी विचार करने लगे गुरु के नाम कैसे ले। इसलिए श्रीमद् भागवत में सब प्रक्षुवादो वेदो एवं बालानुशासनम, इनडायरेक्ट रूप में सारी गोपियों के भी नाम ले लिया, अपने आराध्य देवी राधा जी की नाम ले लिया। अनयारदितूनम भगवान हरिश्वर जन्नो व्याय गोविंद जत जामुनद्र अनयाराधित कृष्णेन आराधितेति राधा। है देखो राधा नाम है। काचिद गोप्पा, कितने सब समस्त करके दिखाया गया। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं सत्संग, साधु संग। जीवन में सौभाग्य जब उदय होता है तब ऐसे संत महात्मा की संग प्राप्त हो जाता है। जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है। हमें भगवान प्राप्ति हो अथवा नहीं प्राप्ति हो, उसके लिए हमें इच्छा नहीं है ना, वो हम आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं भगवान मिल जाए अथवा नहीं मिल जाए। जीवन में हमें क्या चाहिए? कोई जीवन में ऐसी कोई निर्मत्सर संत महात्मा की संग हो जाए। ये कहते हैं धर्म प्रजित कैतव अत्र परम निर्मत्सना सता। निर्मत्सर साधु के लिए कार्य है, जो सदा सर्वदा वश भगवत नाम में, भगवत कथा में डूबे रहते। ऐसे सत्संग होनी चाहिए, साधु संग होनी चाहिए। है जैसे तैसे साधु के द्वारा काम नहीं होगा भाई। है सत्संग है। एक ही श्लोक में जी लिखा रहे हैं, इस श्लोक के एक ही श्लोक वर्णन करते जाएंगे। निर्मत है क्या? धर्म प्रजित कोइतव अत्रो। देखो इस श्रीमद् भागवत में एक ही श्लोक में 3 बार अत्र अत्र कह करके ही बताया गया। अत्र इसी श्रीमद् भागवत में है धर्म
प्रच्छी तो कोई तो वस्त्र, कोई तब कपट धर्म को छोड़ दिया जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब कपट धर्म का है। तार मध्य सर्वश्र मोक्ष वांछा है, जहाँ हईते कृष्ण भक्त है, तार मध्य मोक्ष वांछा কৈতব प्रधान, जहाँ हईते कृष्ण भक्ति হয় अंतर्ध्यान है। कोई बात माने कपटता, कपटता सबसे बड़ी कपटता क्या है? डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी क्या है? मुक्ति वांछा है। अद्वैतवादी मुक्ति के लिए इन्हें कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं, किंतु भागवत प्रमाण दे रहे हैं मुक्ति भी त्याग दिया जाए। इसलिए चैतन्य चैतामृत में तार मध्य मोक्ष वांछा कोई तो प्रधान, जहाँ कृष्ण भक्ति और अंतर्ध्यान। हृदय में यदि मुक्ति की वांछा रहे, इच्छा रहे, तो कृष्ण भक्ति कभी प्रकटित नहीं है। और धर्म अर्थ काम वांछा क्या करें? तो अभी कई शास्त्रकार कहते हैं जीवन में जो है सब भगवत सेवा में लगा दो। क्यों? भक्ति कोई अनुशीलन करें, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके पीछे पीछे अपने आप दौड़ेगी है। भक्ति स्थितरा भवन यदि साथ किसी मूर्ति मुक्ति से मुक्तांजलि सेवते अस्मान, धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। थोड़ी सी कोई भक्ति करें है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने अपने उसके पीछे दौड़ते रहे, दौड़ेगी नहीं चाहने पर भी है, आ जाएगी। लाभ पूजा प्रतिष्ठा अपने आप आएगी है। किंतु माधवेंद्र पूरी बात नहीं किया कि प्रतिष्ठा तार पीछे जाए गड़ैया और माधवेंद्र जाए पलाइया है। चेतन चेतन माधवेंद्र पूरी बात है। प्रतिष्ठा को क्या? प्रतिष्ठा भय माधव जाए पलाइया है। हम तो प्रतिष्ठा के लिए लालायित होते हैं। मेरे गला में कोई माला दिया कि नहीं दिया, मैं देख रहा था, कोई दिया ही है। अच्छा बताओ, प्रतिष्ठा ही हमें गले में सुंदर माला हमें आ जाए, हमें कोई प्रणाम करे, हमें कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा दे है। ये सब क्या है? सब भक्ति की बाधक का है। बाधक समझते हो? अवश्य माधवेंद्र पूरी बात नहीं किया कि सब छोड़ करके चलने लगे और उनके पीछे पीछे प्रतिष्ठा तार जाए गड़ाइया और उसके प्रतिष्ठा भी क्या है? उसके पीछे चलने लगे। आप चाहे नहीं चाहे ये सब आएगा है, किंतु आप क्या करेंगे? क्या उसके भगवत सेवा में लगा दो है। कोई तुम्हें प्रतिष्ठा दे रहे हैं, उस प्रतिष्ठा को क्या करो? गुरु के सेवा में लगा दो है। भगवान के दिन धन संपत्ति दे दिया, चाहे नहीं चाहते हैं दे दिया, भगवान की सेवा में लगा है। आप लोग लगाए कि नहीं लगाए? लगाया तो इतना विशाल मंदिर कर दिया है। भगवान ने दिया तब तो किया है क्या? अरे गुरुदेव तो लगाया, किंतु गुरुदेव तो माध्यम, किंतु आप तो है ना। भगवान ने दिया, गुरुदेव ने दिया, किंतु उसके आपने किया क्या? सेवा में लगाने है। यही जो है वास्तव यही कहा जाता है, इसी की कहा जाता है भक्ति कहा जाता है। अब बात ये सही है कि नहीं? यदि आप लोग धन संपत्ति के एकत्रित करके नहीं करते, इतने विशाल मंदिर कहाँ हो जाते हैं? आप बताओ, सारा विश्व में है इतना बड़ा मंदिर है, हम तो घूमते, आप बताओ है। यहाँ पर 1000 व्यक्ति रहने के लिए गुरुदेव यदि रहते कितने प्रसन्न होते हैं? आप बताओ। गुरुदेव इस मंदिर के यदि गुरुदेव तो ये मंदिर प्रतिष्ठा होने के पहले ही अपने है नित्य धाम में गुरुदेव देखकर कितने प्रसन्न होते, आप बताओ है। आप लोग की
ये देख करके गुरुदेव कितने प्रसन्न होते, हम क्या बताएं, है? आज विश्व में है कोई इतना बड़ा मंदिर है? आप बताओ कहाँ पर है, आप बताओ। तो इसलिए आप लोग के ह्यूस्टन के डिवोटी जो आप लोग जो बनाया, आप लोगों ने जो ये इतना मेहनत किया, ये गुरुदेव के लिए देखिए, इतना विशाल साम्राज्य है, इतना कितने सुंदर है, ये वास्तव सत्य है। आज मेरा याद आता है गुरुदेव ने बोला था ना, ये मैं ही आऊंगा, क्या बोला था, मैं है, हाँ हाँ हाँ, मेरा याद है, मैं तो आप लोग के सामने था, वो जो मैं आऊँ है, हाँ 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 वाह, हाँ, जब हम लोग गुरुदेव के पिक्चर लेकर के वो परिक्रमा कर रहे थे, हाँ 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 जी जी जी, नहीं बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आए, हाँ, याद आता है, बहुत सुंदर आप लोग ने इतने, हाँ हाँ जी, जय हो अच्छी है, बहुत अच्छा लगा है, हाँ सही, वास्तव ये सत्य है। इतने सुंदर, मैं यहाँ पर जब बैठता हूँ मेरे याद आ जाता है, गुरुदेव इसको देख कर कितने प्रसन्न होते, और न जाने यहीं पर सारे विश्व के लोग हैं एकत्रित होते, और यहाँ पर कितने सुंदर होता है, आनंद। किंतु सब समय की बात है, क्या करें, है? आप लोग ने तो अथक परिश्रम तक किया गुरुदेव के लिए, तन मन धन दे करके सब प्रकार से आप लोगों ने सेवा की है, वास्तव ही सत्य है, समय ही सब कुछ है। गुरुदेव ने स्वयं कहा मैं आऊँगा, है, मेरे वही बात आज तक भी मेरे कान में वो गूंजते रहते हैं। मैं अपने हाथ से ये विग्रह को मैं प्रतिष्ठा करूँ, मंदिर प्रतिष्ठा करूँ, है, आज मेरा याद आता है।
जय श्री बोलो गुरुश्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राम। है समय हो गया ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल। वो कहाँ गए भाई? उसके आविर्भाव तिथि मनमोहन। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरे। मेरो राधा रमन हेलो राधे 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 जय 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 श्री। अरे आ जाओ भैया। हेलो राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा महारानी की जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। बोलो जय राधा रानी जय ब्रजबाला जय राधा। हरे जय श्याम सुंदर जय नंदलाला जय श्याम। हेलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 राम। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तुझे की माला नहीं एक थाली की माला नहीं। जो माला बता था ना you also made the garland how is that? I made the program at noon. That was garland I gave it to you.
जगते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्ननाशाय तद्विष्णु पदं सदा सन्ति सूरया मम्मी है कि नहीं? Everybody please take the prasad that Mohan will cook so Sunday.